morning all of you. I know the times are tough, but I hope you and your family is doing well. My name is Prachi Soni. I am a geography teacher in Gandhi Public School, Shikohabad. And today I am here to start with class 11th Geography NCERT book. And the name of the book is Fundamentals of Physical Geography, which is this book. So all those who are viewing this video, I would request you to please either have this book in the form of PDF or if you can have it in the physical form, that is also fine. And so today we will be starting with very basic questions of geography. What is geography? How we study geography? Why we study geography? Who actually coined the term geography? So before that, I would like to tell you the pattern, how would we go with these videos. So every day at the same time you will get a link and you will be watching this video, and I would request you to keep a notebook with you so that you can make notes side by side, and please have this book and read along with it. So I would not be reading every line and explaining this. I will give you a summary, and we will have a doubt class in a week where you can clear your doubts. So it's better whenever you are watching the video, you can take notes, you can take down your doubts and then ask me in the class. Second thing is, I can talk and teach both in English as well as in Hindi. So और मैं कोशिश करूँगी कि जब भी मैं पढ़ा रही हूँ मैं दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स करके यूज़ करूँ. But as you study in an English medium school, you have to make yourself comfortable with English so that you understand better. But I know it's not a day process, तो इसीलिए कुछ शुरू की classes में I will try to go bilingual, जिसमें मैं English as well as हिंदी में आपसे बात करने की कोशिश करूँगी. I will try to explain concepts both in English and Hindi. So starting with chapter number 1, which is geography as a discipline. Now what do you mean by discipline? Discipline के दो मतलब हो सकते हैं. एक मतलब होता है जो आपको आपके मम्मी पापा फॉलो करने के लिए बोलते हैं कि टाइम से उठो, टाइम से सो, खाना नहीं खाते हो, फोन में मत लगो. बेसिक डिसिप्लिन की आप एक रूल, एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल फॉलो करो. ऐसा नहीं कि आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो. अनदर डिसिप्लिन विच इज मोर थोड़ा अकेडमिकली और पढ़ाई से रिलेटेड होता है, एंड दैट इज योर सब्जेक्ट. एनी सब्जेक्ट, दैट इज योर डिसिप्लिन. सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं. आपने अभी तक आप 10th क्लास में इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए आए हो. मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स. Now you have taken humanities. So humanities has a lot of subjects like history, political science, economics, sociology. So all these are disciplines. इनका मतलब होता है subjects. अब इनको discipline क्यों बोला जाता है? इनको discipline इसलिए बोला जाता है कि इसमें आपको बहुत सारा content मिलता है. ये ऐसे subject हैं जो आपको हर तरह की information के बारे में provide करते हैं. अभी क्योंकि this is a class of geography, so we will be talking about geography. जोग्राफी एज अ सब्जेक्ट आप लोगों ने 9th-10th में एक साइड सब्जेक्ट की तरह पढ़ा होगा, विच वॉज अ पार्ट ऑफ योर एसएसटी. पूरे सोशल साइंस का एक छोटा सा पार्ट था जिसमें कुछ 7 से 8 चैप्टर्स थे जो आपने जोग्राफी पढ़ी. बट नाउ इट इज अ लिटिल डिफरेंट. दैट इज आपका पूरा एक सब्जेक्ट रहेगा आपका जोग्राफी. सो फॉर जोग्राफी बेसिक, आप लोगों को बहुत बेसिक आइडिया होगा जो आपने अपने 9th, 10th और उससे पहले ज्योग्राफी पढ़ी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ज्योग्राफी. नाउ ज्योग्राफी क्या होती है? ज्योग्राफी क्या है? जियो प्लस ग्राफी, ये दो वर्ड्स से मिलकर बनी है. जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन का मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना. So geography means description of the earth, which means कि अर्थ में जितने भी phenomena आप अपने आसपास देख रहे हो, that is geography. Now ma'am, what are phenomena? Phenomena क्या होते हैं? जो भी चीजें आपने mountains, lakes, rivers, plains, plateaus, volcanoes, earthquake, everything जो आप अपने around देखते हो, it is somehow related to geography. Now geography एक
रिलेशनशिप, इट टेल्स यू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स, हम लोग, और फिजिकल यानी जो आपके फिजिकल फीचर्स होते हैं। अभी फिजिकल मतलब क्या होता है? फिजिकल मतलब हर वो चीज़ जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, यू कैन फील इट एंड यू कैन सेंस इट, तो दैट इज योर फिजिकल। नाउ फिजिकल ज्योग्राफी में हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, अर्थ कैसे बनी, कब बनी, उसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। माउंटेन्स कैसे बनते हैं, वाटर कहाँ से आता है, वाटर के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। अगर आप ओशन के अंदर जाओगे तो आपको क्या क्या अलग अलग फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। लैंड फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट तरीके के, लेक्स कैसे बनते हैं, पॉन्ड्स कैसे बनते हैं, और रिवर्स कैसे बनती हैं। आपने अगर आप पहाड़ों वगैरह में घूमने गए हो तो वहाँ देखा होगा जो रिवर की विड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत पतली पतली रिवर्स होती हैं। ऐसा क्यों होता है? बल्कि प्लेन एरियाज में हमारे आसपास रिवर काफ़ी चौड़ी होती हैं। सो ऑल दीज आर योर फिजिकल फीचर्स। अब ये फिजिकल फीचर्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? मैं आपको जो ज्योग्राफी पढ़ता है उसको क्या मतलब है कि बारिश कब हो रही है, कि पानी कहाँ से बह रहा है, लेक क्यों बन रही है, हमको इन सारी चीज़ों से इसीलिए मतलब है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं, हमको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से फर्क पड़ता है। फर्स्ट इज योर व्हाट इज ज्योग्राफी। मैंने आपको बता दिया, ज्योग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, और अर्थ क्या है? अर्थ एक वो है एबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। एबोर्ड का मतलब होता है घर, रहने की जगह। तो आप जिस घर में आप जहाँ रहते हो दैट वुड बी योर अबोर्ड। तो अबोर्ड क्या है? एक घर होता है। तो अर्थ क्या है? हमारा ह्यूमन बींग्स का घर। और समय के साथ साथ हमने इस अपने घर को काफ़ी अच्छे से पहचानना शुरू कर दिया है हम, और न्यू टेक्नोलॉजीज और सिस्टम के साथ इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज योर व्हाई वी स्टडी ज्योग्राफी। बहुत सिंपल सा है इसका रीज़न क्यों हमें ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु आर लिविंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और पीपल हु आर लिविंग इन मुंबई रिसीव वेरी एक्सटेंसिव रेनफॉल, विच मीन्स उनके पास बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब उनको अगर पता ही नहीं होगा कि कब बारिश होने वाली है, कब बारिश नहीं होने वाली है, कब सूखा पड़ सकता है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ की चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग ठंडे बर्फीले इलाकों में रहते हैं वहाँ पे दे मेक देयर रूफ्स स्लांटिंग। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी में रहने वाले घरों की जो रूफ्स होती हैं वो थोड़ी स्लांटिंग होती हैं। स्लांटिंग का मतलब थोड़ी स्टीप डाउन होती है। उससे क्या होता है? बर्फ गिरेगी तो वहाँ रुकेगी नहीं, स्लिप कर जाएगी। और नॉट जस्ट रूफ्स बट उनके जो ट्रीज भी होते हैं उनकी शेप भी कोनिकल होती है, मतलब जैसा आप आइसक्रीम का कोन खाते हो उस शेप के उनके ट्रीज होते हैं, ताकि जो बर्फ है वो वहाँ स्टे ना करे और नीचे चली जाए। क्योंकि अगर बर्फ अटक जाएगी तो नेचुरल सी बात है, जो पेड़ पौधे हैं वो सूख सकते हैं। सो ह्यूमन बींग्स के लिए जितना फिजिकल नेचर बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम फिजिकल नेचर के बारे में जैसे जैसे स्टडी करते रहेंगे उतना हमारी लाइफ के लिए इजी और कंफर्टेबल हो जाएगा। जिससे अगर आपको पता चल जाए कि अगले आधे घंटे में बारिश हो सकती है तो आपकी मम्मी बाहर कपड़े सुखाएंगी नहीं। आपको पता चल जाए कि बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है, तो आप घर से बाहर स्टेप आउट नहीं करोगे। अर्थक्वेक आ जाता है, या अर्थक्वेक जब पता चलता है बड़े बड़े जगहों पे कि अर्थक्वेक आने की संभावना है, साइक्लोन आने की संभावना है, थंडरस्ट्रोम आने की संभावना है, तो लोग डिजास्टर मैनेजमेंट करके कहीं ना कुछ करते हैं और अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप नेचर के साथ एक लिमिटेड अमाउंट में ही छेड़खानी कर सकते हो। उसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे सो नेचर वोंट परमिट दैट। मतलब आप नेचर को अगर बहुत एक्सटेंसिवली यूज करने लग जाओगे, उसको हार्म करने लगोगे, सो इट विल बैकफायर यू। सो हम कोशिश करते हैं कि हम नेचर को उतना ही एक्सप्लॉयट करें जितना हमारे लिए जरूरत है। बट क्या ऐसा होता है? क्या हम नेचर को लिमिटेड एक्सप्लॉयट कर रहे हैं? क्या वी आर नॉट ओवर यूटिलाइजिंग आवर नेचर? वी आर। और इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी पॉपुलेशन। हमारी नॉट जस्ट इंडिया, अगर हम पूरे वर्ल्ड की भी बात करते हैं तो हर जगह पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके कारण नेचर पे जो डिपेंडेंस है और जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता जा रहा है।
तो हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हर चीज जो हमारे आसपास है, पानी, हवा, जमीन, मिट्टी, हर चीज कहीं ना कहीं हमसे लिंक्ड होती है, एंड दैट इज व्हाई इन दोनों चीजों के बीच की आपस की रिलेशनशिप को समझने के लिए हम ज्योग्राफी पढ़ें। हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे कैसे? हाउ वुड वी स्टडी ज्योग्राफी? हाउ? सो ज्योग्राफी पढ़ने का एक आप अगले 2 साल में आपकी 11th और आपकी 12th में आप ज्योग्राफी 2 तरीके से पढ़ेंगे। 11th में 2 ज्योग्राफी की बुक है, एक है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी और एक है आपकी इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें आपको इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, उसके पहाड़ों के बारे में, आइलैंड्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, सॉइल्स और अलग अलग तरीके के फार्म, नेचुरल वेजिटेशन वगैरह के बारे में आपको इंडिया की बुक पता चलेगा। फिर आप जब क्लास 12th में जाएंगे, सो देयर विल बी 2 बुक्स जो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, इस चैप्टर में आगे भी हम पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी के कितने अलग अलग सोर्सेज होते हैं और कितने डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें ज्योग्राफी डिवाइडेड होती है। सो एक इसमें वर्ड है प्रिमिटिव सोसाइटीज। प्रिमिटिव सोसाइटीज का मतलब होता है, ये लिखा है, प्रिमिटिव सोसाइटीज का मतलब होता है वो सोसाइटीज जो पहले, प्रिमिटिव का मतलब हो गया बेसिक, प्रिमिटिव का मतलब हो गया जो बहुत एडवांस्ड नहीं, प्रिमिटिव का अपोजिट होता है एडवांस, यानी कि जो बहुत बेसिक तरीके से लाइफस्टाइल जीते थे। जो आपने, अगर आपने पुरानी पिक्चर वगैरह भी देखी होंगी, पिक्चर नहीं भी देखी होंगी तो आपके घर में आपकी दादी या पापा भी होंगे, तो भी वो आपको बोलते हैं कि हम तो बड़ी सादी जिंदगी जीते थे, सादी लाइफ थी हमारी, सिंपल लाइफ हुआ करती थी, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। जैसे हमें आज की डेट में पानी की कमी और पॉल्यूशन, इतने सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, उनके साथ ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो नेचर को वर्शिप करते थे, वो नेचर को इस तरह से यूटिलाइज नहीं करते थे कि उन्हीं के लिए उसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाए। सो प्रिमिटिव सोसाइटीज वो लोग होते थे जो नेचर पे डिपेंडेंट होते थे, यानी कि खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करके, जानवर वगैरह को मार के, कपड़ों के लिए वही नेचुरल जो मिले, हर चीज के लिए दे यूज्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट और नेचर। फिर आता है आपका हु से मतलब क्या है? ये जो ज्योग्राफी टर्म हम पढ़ रहे हैं, ये किसने निकाला है? कौन था जिसने बोला कि एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसका नाम ज्योग्राफी होना चाहिए? उनका नाम था इराटोस्थेनोस, दैट इज सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट द स्पेलिंग। आपकी बुक में पेज नंबर 1 पर ही नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, इराटोस्थेनोस, जिन्होंने ये टर्म ज्योग्राफी कॉइन किया था, इसीलिए हम इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोलते हैं। नाउ हो गया है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी। नाउ हम कुछ ये ज्योग्राफी के आसपास रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो ज्योग्राफी से काफी ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट इज योर डायनामिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, पहली जो बहुत बड़ी हो और दूसरी जो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती हो, जिसका मतलब क्या है? कुछ ऐसा जिसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है और उसमें किसी न किसी तरीके का चेंज हो रहा है, उसको हम डायनामिक बोलते हैं। तो जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ये काफी डायनामिक सब्जेक्ट है, जिसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो प्रोसेसेस हैं उनमें जरा बहुत चेंजेस हमें हमेशा देखने को मिलते रहते हैं। नेक्स्ट इज योर स्पेशियल वेरिएशन। स्पेशियल वेरिएशन, अभी इन वर्ड्स को जो मैं मतलब बता रही हूँ प्लीज उनको नोट कर लीजिएगा। स्पेशियल, एक तो जो पहला वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलके बना है स्पेस। स्पेस क्या होती है? जगह। स्पेशियल वेरिएशन का मतलब अलग अलग रीजन में, अलग अलग जगह में, डिफरेंट स्पेसेस में हाउ देयर आर वेरिएशंस यानी कि डिफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन हु इज लिविंग इन उत्तर प्रदेश डज नॉट सी माउंटेन्स अराउंड हिम और हर, बट अ पर्सन लिविंग इन उत्तराखंड और हिमाचल, वो उनके लिए पहाड़ देखना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो उसी तरीके से ये जो वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस। हर जगह में ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी डिफरेंट होती है। आप ऐसा नहीं होगा कि आप शुक्राबाद में रहो तो यहाँ पे आपको पहाड़, नदियाँ, प्लेट्यू, प्लेन सब देखने को एक ही जगह पे नहीं मिल सकता। हर रीजन की कुछ स्पेसिफिटीज होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब डिफरेंस। बोलते हैं ना, आप दुकान पे शॉपिंग करने जाते हैं, वैरायटी दिखाओ कुछ, अलग अलग चीजें। तो स्पेशल वेरिएशन का मतलब अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्पेस में अलग अलग फिजिकल फीचर्स हमें देखने को
मिलते हैं। इसको हम थोड़ा देर में देखते हैं। नाउ दिस इज योर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का कॉज और इफेक्ट क्या होता है? कॉज मतलब हो गया, ये थोड़ा सा बुद्धिस्ट टर्म भी है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज मतलब हो गया किसी भी चीज का कारण। आप कुछ भी करो लाइफ में, अगर थोड़ी देर के लिए हम ज्योग्राफी को साइड रखें, सो वट एवर यू डू इन लाइफ उसके पीछे रीजन होता है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो सकता है आपके मम्मी पापा ने आपको फोर्स किया हो, बट स्टिल देयर इज अ रीजन, क्योंकि आपने 11th पढ़ रहे हो, आपने ज्योग्राफी लिया है, आपको पेपर क्लियर करके नेक्स्ट क्लास में जाना है। हर चीज के पीछे एक कॉज होता है। मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि मुझे स्कूल से ऑर्डर आया है कि ऑनलाइन क्लासेस लेना है, रिकॉर्ड करके भेजिए। सो एवरीबडी अराउंड यू, आपकी मम्मी खाना बना रही है क्योंकि उनको अपने घर वालों का पेट भरना है। तो हम कोई भी चीज करते हैं उसके पीछे एक रीजन होता है, पर सिर्फ रीजन नहीं होता, उस चीज को करने के बाद उसका कुछ रिजल्ट भी निकलता है, मतलब उसका कुछ इफेक्ट भी होता है। सो दैट इज द रिजल्ट। तो अगर हम इसको नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट करें, मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे स्कूल ने बोला है पढ़ाने के लिए, कॉज पता चल गया, प्रेजेंटली मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका इफेक्ट क्या होगा? आप तक ये चीज पहुंचेगी और आपको ये चीज सारी समझ में आएगी, और इसका फिर आउटकम क्या होगा कि आपको ये आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। वो रिजल्ट अच्छा आना आपका दूसरी चीज का कॉज बन जाएगा। चलो अब थोड़ा लाइफ से हट के ज्योग्राफी में अगर हम बात करें, तो ज्योग्राफी में क्या होता है? एक पत्थर जब छोटा चूर चूर टूट जाता है तो मिट्टी बन जाती है, सैंड बन जाती है। तो वो पत्थर टूटा कैसे? वो टूटा ऐसे कि उस पे हवा का प्रभाव पड़ा, हीट पड़ी, पानी पड़ा, या फिर किसी जानवर का पैर पड़ गया तो वो पत्थर क्रश हो गया। अब वो पत्थर क्या बन गया है? मिट्टी की लेयर बन गया है। धीरे धीरे क्या होगा? वो मिट्टी उड़ के कहीं और चली जाएगी और वहां पर डिपॉजिट करके एक पहाड़ बना देगी। तो क्या हुआ? पत्थर का टूटना कारण बना और उससे एक नया पहाड़ जो बन गया, दैट इज योर इफेक्ट। तो ज्योग्राफी में भी एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चलता है। हर चीज के पीछे, हर जो भी चीज आपको अपने सामने दिख रही है, मिट्टी की इतनी सारी जो लेयर दिख रही है आपको, पहाड़ दिख रहे हैं, प्लेन दिख रहे हैं, उन सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कॉज होता है। डिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि जो आपका सब्जेक्ट, एक ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। आपकी बुक में पेज नंबर 3 में फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दो सब्जेक्ट्स टू यू। फर्स्ट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब हो गया जियोग्राफी में ही जो बेस कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोलॉजी की, कहाँ से क्यों अर्थ बना, कैसे अर्थ बना, एवरीथिंग अर्थ के बहुत एक छोटा सा बहुत एनर्जी पावर से भरा हुआ एक गोला था जो फट गया, जिसके कारण बिग बैंग थ्योरी वगैरह बोलते हैं। सो जियोलॉजी। पेडोलॉजी मतलब होता है, पेडो का मतलब होता है सॉइल, तो सॉइल की स्टडी। जितने भी ये लॉजी अगर आपको दिख रहा है वर्ड के पीछे, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो पेडोलॉजी मतलब सॉइल की स्टडी। नेक्स्ट इज योर ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी का मतलब होता है हम ओशन की स्टडी करते हैं, ओशन में क्या क्या है, अलग अलग फीचर, इक्वेटिक लाइफ, एवरीथिंग। थर्ड हो गया बॉटनी। बॉटनी का मतलब जो कि आप जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। इस बुक में भी आगे आप देखेंगे जो आखिरी के कुछ चैप्टर्स हैं वो आपको लाइफ, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताते हैं, फिशेस के बारे में, कौन से IUCN के बारे में पढ़ा होगा आपने कि कुछ जानवर होते हैं जो एक्सटेंट हो जाते हैं, हो गए हैं। जैसे आपने हम सबको बचपन में डायनासोर्स में बड़ा इंटरेस्ट होता था, पर लेकिन डायनासोर्स अब नहीं है। क्या ऐसा हुआ होगा उनकी कंडीशंस में कि वो खत्म हो गए? आज भी वैसे बहुत सारे जानवर हैं। डोडो नाम की एक बर्ड है जो अब एग्जिस्ट नहीं करती है। वल्चर्स अगर आपको पता हो, वो अभी हाईली क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब उस एक का दुक्का बचे हैं, फिर खत्म हो जाएंगे। सो डिसिप्लिन ये है। फिर आपका बॉटनी, जूलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स से रिलेटेड पढ़ते हैं, प्लांट्स जो भी हैं, पेड़ पौधों, अलग अलग वेजिटेशन होते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज कहाँ होते हैं, दूर दूर पेड़ पौधे कहाँ होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट, एवरीथिंग। जूलॉजी में हम जानवरों की स्टडी करते हैं। मेटेरोलॉजी में जो आपका ये मेटल्स होते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, इन सारे जो इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं उसको मेटेरोलॉजी बोलते हैं। उसके अलावा ये हर सोशल साइंस के सब्जेक्ट से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से ज्योग्राफी कैसे कनेक्टेड होती है? आप अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ा आपने पिछले साल, तो वर्ल्ड वॉर 2
को हमने किससे रिलेट किया कि कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया था. Who were the Allied powers, who were the Axis power, जर्मनी, यूरोप के बारे में भी स्टडी, नाजिज्म पढ़ा आपने, एवरीथिंग. सो वी स्टडीड अबाउट द ज्योग्राफी. सो जब तक वी वोंट, हमें ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता होगा, सो हाउ वुड बी रिलेटेड टू हिस्ट्री. सो अगर हम अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी सुना होगा, पानीपत के बहुत सारे युद्ध हुए हैं, 3 बैटल्स ऑफ पानीपत में. तो पानीपत में ऐसा क्या था कि सब लोग वहीं पर लड़ाई करने के लिए पहुंच जाते थे? ऐसा कोई उन्होंने फिक्स तो नहीं किया हुआ था कि आपको जब भी जंग करनी हो हमारे पास आ जाना, हमारे पास खुली जमीन है. नहीं, पानीपत में जाकर वॉर करने के कुछ रीजंस थे, और वो भी ज्योग्राफिकल रीजंस थे. फर्स्ट वाज, वहां पे काफी ओपन ग्राउंड था जिसमें वॉर करना आसान हो जाता था. सेकेंड वाज, वहां से एक नदी बहती थी जिससे लड़ाई करते वक्त पानी की कमी ना हो, क्योंकि इतने सारे सोल्जर्स जा रहे हैं, आपकी जानवर जा रहे हैं, घोड़े, हाथी, आप सबको लेके जा रहे हो, तो उनको पानी तो चाहिए. तो वहाँ पे पानीपत में वाटर अवेलेबिलिटी थी, और क्योंकि पानीपत ये दिल्ली हरियाणा के साइड में पड़ता है, तो उस टाइम पे, अब तो खैर यहाँ पे भी काफी गर्मी होती है, एक मैनेजेबल टेम्परेचर था. अभी आप पानीपत से ऊपर चले जाओगे जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे काफी सर्दी है, और थोड़ा सा नीचे आ जाओगे साउथ की साइड में, महाराष्ट्र वगैरह में, यहाँ पे काफी गर्मी थी. तो पानीपत में एक स्टेबल टेम्परेचर मिलता था लड़ाई करने के लिए. इसीलिए इस तरह से हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिलेशन बनता है. ज्योग्राफी हर तरीके से, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल आपकी सोशियोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटिकल साइंस आपको पता है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमंस किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उससे भी काफी ज्यादा रिलेटेड. नाउ एरियल डिफरेंशिएशन, ये वर्ड जो लिखा है एरियल का मतलब होता है हवा से. हवा से मतलब एयर में, ऊपर से अगर आप कोई चीज देखते हैं, एरोप्लेन बोलते हैं ना, एरोप्लेन क्यों बोला जाता है जनरली? क्योंकि आप ऊपर से, आप एरोप्लेन के बाहर से अगर आप बैठे हैं तो देखेंगे तो सब आपको बहुत छोटा छोटा दिखता है. एंड इफ यू हैव एवर ट्रेवल्ड इन एयरप्लेन और नहीं भी किया है तो आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा. सो नीचे से चीजें बहुत छोटी छोटी दिखती हैं, पर एक बहुत बड़ी पिक्चर आपको मिल जाती है देख. तो ज्योग्राफी को भी हम ऐसे ही एरियल डिफरेंशिएशन, यानी कि जगह जगह में डिफरेंट तरीके से स्पेशियल वेरिएशंस हैं, अलग स्पेस के अलग फिनोमेना हैं. नाउ हमने छोड़ा था टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी जो आप आज सब कुछ कर रहे हो, आज हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास की हवा में, एयर में कितनी नमी है. नमी का मतलब ह्यूमिडिटी कितनी है. एंड विद दैट अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी वी कैन प्रिडिक्ट कि आज रेनफॉल हो सकती है या फिर नहीं रेनफॉल हो सकती है. वी कैन प्रिडिक्ट अर्थक्वेक कब हो सकता है, वी कैन प्रिडिक्ट सूखा कब पड़ सकता है, ये कब बारिश नहीं आएगी. सो ऑल दीज थिंग्स क्या है, ये हमने इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि हम सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं. आपको अगर पता हो तो चाइना अपना खुद का सन बनाने की प्लानिंग में है कि वो एक सन बनाकर भेज सकता है. सो दिस इज आवर टेक्नोलॉजी. हम हर तरीके से अपने बेस्ट पॉसिबल वे में नेचर को चेंज करने की कोशिश करते हैं. अब आती है डिबेट क्या होता है? डिबेट मतलब जब आप फॉर और अगेंस्ट दो चीजों के पास आपको पॉइंट देते हो, नेचर वर्सेस ह्यूमन. देखा जाए तो नेचर इज वेरी स्ट्रॉन्ग. नेचर आपको, अगर नेचर से आप ज्यादा कहते हैं ना, नेचुरल चीजों के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज इट बैकफायर्स यू. सो नेचर वर्सेस ह्यूमन बीइंग की डिबेट बहुत सिंपल सी है. इस बुक में आपकी एक पोएम लिखी हुई है, आई वुड लाइक टू रीड दैट पोएम, एंड दैट इज यू क्रिएटेड द सॉइल. उसने ये नेचर के लिए लिखा है कि भगवान को लिखा है कि तुमने मिट्टी तो बना दी, पर उस मिट्टी से कप मैंने बनाया है. आप मिट्टी यूज नहीं कर रहे हो, आप यूज तो कप ही कर रहे हो ना उसका बना हुआ. सो यू क्रिएटेड द सॉइल, आई क्रिएटेड द कप. यू क्रिएटेड द नाइट, आई क्रिएटेड द लैम्प. रात आपकी किसी काम की नहीं है, पर रात ने, जो ह्यूमन बीइंग्स ने एक लैम्प बनाया विच इज यूजफुल टू यू. यू क्रिएटेड वाइल्डरनेस का मतलब होता है ये फॉरेस्ट वगैरह. हिली टेरेन्स, पहाड़ बड़े बड़े, डेजर्ट्स बनाए. मैंने बनाया फ्लावर बेड्स, गार्डन्स, ये सब इंसानों ने बनाया. Human beings have claimed their contribution using natural resources. Basically, हमने हर तरीके से नेचर को अपने यूज के लिए कर लिया है.
रात जरूरी है प्लांट्स के लिए, पौधों को उनको सोचो आप पूरे दिन सन मिलता रहेगा, पूरे दिन सनलाइट मिलती रहेगी, आप एक पौधे को आपके पास तो अवेलेबल नहीं है, बहुत ज्यादा सनलाइट मिलने से भी पौधे प्लांट्स खराब हो जाते हैं, आप भी खराब हो जाओगे, पूरे दिन आप सन में रहोगे, हमारी नेचुरल जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो नेचर वर्सेस ह्यूमन बीइंग में एक डिबेट है काफी बड़ा, पर लेकिन एट द एंड हम सबको पता है कि हम नेचर को एक लिमिटेड पॉइंट तक ही छेड़खानी कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड अगर हम जाएंगे सो नेचर वुड हार्म अस। सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, मैं आप एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहूंगी दैट टेक्नोलॉजी इज समथिंग जिसके हिसाब से थोड़ा हमने एडजस्ट किया है और थोड़ा सा हमने नेचर को एडजस्ट करा लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी फूड हैबिट्स चेंज करी, पीपल हु आर लिविंग इन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वो आपके जैसा सेम खाना नहीं खाते हैं। पीपल हु आर लिविंग इन असम, अरुणाचल प्रदेश आर नॉट ईटिंग द सेम फूड यू आर ईटिंग, क्योंकि उनके वहाँ के रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। पीपल लिविंग इन साउथ इंडिया ईट डिफरेंट फूड, क्योंकि वहाँ पर वीट ग्रो करना इतना आसान नहीं है जितना यहाँ पे। वो चावल क्यों खाता है? क्योंकि वहाँ पे बारिश है, बारिश में पानी से चावल उग जाते हैं। सो हम अपनी हैबिट्स, अपनी क्लोथिंग, अपना फूड हैबिट्स, हर चीज चेंज करते हैं फॉर टेक्नोलॉजी। पर धीरे धीरे नेचर ने ह्यूमन को इतना ह्यूमन ने नेचर को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है कि हम एक पहले जो एक स्टेज में थे जब हमें सिर्फ जरूरत होती थी नेचर की, हम सिर्फ तभी उसको यूज करते थे। नाउ वी हैव मूव्ड टू अ स्टेज ऑफ फ्रीडम, जहाँ पे हम नेचर को एकदम फ्रीली यूज करने लग गए हैं, बिना किसी रोक टोक या बिना किसी अपने ब्रेन को सस्टेनेबल यूज के। वी आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर टू इट्स लेवल बेस्ट. We have moved from the stage of necessity to the stage of freedom. Thank you.